Assalamualaikum class. Today we are going to do chapter 10, Musharka. By this way, you officially start the actual contracts, actual types of businesses that Islamic bank or financial institution undergoes. So let's discuss by discussing what a Musharka is. Let's discuss its definition and classification. So the literal meaning of musharka is sharing. Okay, the root term जिससे musharka derive किया गया वो अरेबिक का वर्ड है शिरका, जिससे ये वर्ड derive किया जिसका मतलब होता है being a partner. It's used in the same context in terms of shirk जिसका मतलब होता है partners to Allah. So the literal meaning of musharka is sharing. The root of the term musharka in Arabic comes from the word shirka, which means being a partner. It is used in the same context as the term shirk, meaning partner to Allah. Under Islamic jurisprudence, musharaka means a joint enterprise found for conducting some business in which all partners share the profit according to a specific ratio, while the loss is shared according to the ratio of the contribution. It is an ideal alternative to interest-based financing with their far-reaching effects on both the production and distribution of wealth in the economy. The connotation of this term is more limited than the term shirka, more commonly used in Islamic jurisprudence. For the purpose of clarity in the basic concept, it is pertinent at the outset to explain the meaning of each term as distinguished from the other. Shirka means sharing, and in the terminology of Islamic fiqh, it has been divided into two kinds. ठीक है, तो दो टाइप के शिरका होते हैं, जिसका मतलब बेसिकली है सिर्फ शेयरिंग का. The first one is shirkatul milk, पार्टनरशिप बाय जॉइंट ओनरशिप. ठीक है ना, कि दो लोगों की जॉइंट ओनरशिप उससे पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हो जाती है. इट मींस जॉइंट ओनरशिप ऑफ टू और मोर पर्संस इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. किसी एक चीज के अंदर किसी दो लोगों की जॉइंट मिल्कियत होना. दिस काइंड ऑफ शिरका मे कम इनटू एग्जिस्टेंस इन टू डिफरेंट वेज. अब ये दो डिफरेंट तरीकों से एग्जिस्ट कर सकता है. एक ये शिरका ऑप्शनल हो सकता है कि इख्तियारी शिरका, आपने दो लोगों ने मिलकर एक चीज खरीद ली है, क्योंकि दोनों ने मिलकर खरीदी है इसलिए दोनों उसके मालिक हैं. तो ये एक इख्तियारी शिरका है कि आपने चूज किया कि मैं और ये बंदा दो हम मिलके जाके एक चीज खरीद लेते हैं. ठीक है, सो दिस जो ये शिरका हुआ है ये बेसिकली आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है, या ऑन ऑप्शन या ओपिनियन के ऊपर हुआ है. ठीक है, और दूसरा है कंपल्सरी, गैर इख्तियारी. ठीक है, तो कंपल्सरी या गैर इख्तियारी बेसिकली वो है जहां पर आपने अपनी चॉइस से ये जो है ना शेयर नहीं की चीज, इसकी ओनरशिप ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट आपको जो थी वो इन शेयरिंग ही मिली. जैसे कि पेरेंट्स की डेथ के बाद जो विरासत है वो बेसिकली बच्चों को मिलती है, तो वो डिवाइड होती है सबके अंदर, तो वो सबकी एक जॉइंट ओनरशिप होती है, और ये आपकी चॉइस नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट कंपलसरी है. ठीक है, सो ऑप्शनल इख्तियारी एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज. फॉर एग्जांपल, इफ टू और मोर पर्संस परचेज इक्विपमेंट, इट विल बी ओन्ड जॉइंटली बाय बोथ ऑफ देम, and the relationship between them with regards to this property is called shirkatul milk ikhtiyari. Here, this relationship has come into existence at their own option as they themselves have opted to purchase the equipment jointly. Secondly, आ जाती है compulsory या गैर इख्तियारी. This comes into existence automatically without any effort or action taken by the parties. For example, after the death of a person, all his heirs inherit his property, which comes into their joint ownership as a natural consequence of the death of that person. There are two more types of joint ownership जो कि है शिरकतुल मिल्क के अंदर, शिरकतुल आइन और शिरकतुल दाइन. ठीक है, और अगेन अ प्रॉपर्टी इन शिरकतुल मिल्क दैट इज जॉइंटली ओन्ड, इसको आप इसको ना दो जॉइंटली ओन्ड है और डिवाइड नहीं हुई हुई, तो इसको आप मुशा भी कह सकते हैं. एन अनडिवाइडेड एसेट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द फॉलोइंग मैनर, के जो मुशा है उसको किस तरह से यूज किया जा सकता है, उसके यूज के जो तरीके हैं वो ये तीन तरीके हैं जिस तरह से इसको यूज किया जा सकता है. पहला है मुश्तरक इंतिफा, म्यूचुअल यूटिलाइजेशन, कि एक चीज जो आपकी जॉइंट ओनरशिप के अंदर उसको आप दोनों इस्तेमाल करें. ठीक है ना, कि म्यूचुअल या जॉइंट यूज जो है एसेट का अंडर सर्कमस्टांसेस वेयर द पार्टनर्स और जॉइंट ओनर्स आर ऑन गुड टर्म्स, कि आपकी दोनों की आपस में अच्छी गुड टर्म्स है तो दोनों मिलकर इस्तेमाल करें. फॉर एग्जांपल, एक घर है उसमें दो भाई रहते हैं, दोनों की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो दोनों उस घर के अंदर मिलकर उस घर को इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर एक कमरा एक का, दूसरा दूसरे का, या और बाकी सब चीजें जॉइंटली वो यूज कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह से एक और जिसको यूटिलाइजेशन का तरीका होता है वो है मुहैया,
या अल्टरनेट यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब जहां पर ये हो जाए कि जी कुछ इस तरह की चीज है कि जो आप कुछ दिन के लिए यूज कर सकते हैं और दूसरा बंदा कुछ दिन के लिए यूज करता है, तो इस तरह आप उसको मुहैया भी कर सकते हैं कि अब आपकी टर्म्स इतनी अच्छी नहीं है कि किसी के साथ कि आप उस चीज को यूज करें, तो आप ये कहते हैं जी 15 दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, 15 दिन तुम ये चीज इस्तेमाल करना। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आपने और आपके साथ किसी दोस्त ने मिलकर एक बाइक खरीदा, अब आपकी टर्म्स इतनी अच्छी नहीं रही आपसे, तो आपने कहा कि यार हम म्यूचुअली तो यूज नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि हम इसको ना अल्टरनेट यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, मुहैया कर लेते हैं। 15 दिन महीने का शुरू के मैं यूज करूंगा, 15 दिन महीने के आखिर के तुम यूज करना। So under this agreement, the owner will fix the number of days within a specific time interval for each partner to get use effect of the asset. For example, one may use the product for 15 days and then the other may use it for the rest of the month. इसी तरह से अगर ये भी ना हो और लेकिन एसेट ऐसा है कि वो दो लोग आपस में डिवाइड कर सकते हो, तो फिर अगर उनकी आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो, बेहतर तो कि वो जितना अच्छा हो यूज करें, अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो उसको तकसीम भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डिवीजन। ठीक है, तो बेसिकली वो अगर एक प्लॉट लिया था या एक घर लिया था, तो आप उसको तकसीम कर लेते हैं, बांट लेते होते हैं अक्सर ही कि ये सेंटर में एक दीवार कर ली कि इतना पोर्शन इसका, इतना पोर्शन इसका। या अगर एक प्लॉट है तो उसमें से आधा एक ने ले लिया, आधा दूसरे ने लेकर ज्वाइंट ओनरशिप है, तो बिल्कुल और इक्वल ज्वाइंट है, तो क्योंकि वो दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते तो उसको डिवाइड कर लें। So this refers to the division of jointly owned asset. This may be applied in case where the asset that is owned can be divided permanently. For example, jointly taking 1,000 square yard plot and making a house on 500 square yards by each of the two owners. ठीक है जी, कि खुद दोनों ने मिलकर खरीदा 1,000 स्क्वायर यार्ड्स का घर प्लॉट, और उसके ऊपर फिर 500 स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर दोनों ने अपना अपना घर बना लिया, ताकि वो सेपरेट हो जाए और तकसीम हो जाए ये प्रॉपर्टी। लेकिन ये बाइक के केस में या गाड़ी के केस में नहीं हो सकता कि उसको आप आधा कर लेंगे। ठीक है, तो ये उस चीज के साथ ही हो सकता है जिसको आप हाफ कर सकें और उनकी परमानेंट ओनरशिप उनको चली जाए। और अगर इन सब के बाद भी पार्टनर्स इसकी यूटिलाइजेशन से, किसी भी तरह की अल्टरनेट यूटिलाइजेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उसका आसान हल ये है कि उसको बेच दिया जाए और उसकी जो प्रोसीड्स हैं वो मार्केट प्राइस पे बेचकर वो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दी जाए। देन कम्स विद शिरकतुल, जो दूसरी टाइप है, पहली हमने डिस्कस की थी शिरकतुल मिल्क, और दूसरी जो टाइप है वो है शिरकतुल अक्द या पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट, कि अब आपने कुछ लोगों ने मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पार्टनरशिप कर ली है। ठीक है, वो तो मलकियत के अंदर थी, अब ये इन पार्टनरशिप थ्रू अक्द है, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ शिरका व्हिच मींस अ पार्टनरशिप इफेक्टिव बाय म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दोनों ने म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेविटी इट के मे आल्सो बी ट्रांसलेटेड एज जॉइंट कमर्शियल एंटरप्राइज, के मिलकर लोगों ने कमर्शियल एंटरप्राइज स्टार्ट की है। तो शिरकतुल अक्द कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू थ्री काइंड्स। ये तीन काइंड्स क्या है? शिरकतुल अमवाल, ठीक है, कि पार्टनरशिप इन कैपिटल, जहां पर तमाम पार्टनर जो हैं वो कुछ ना कुछ कैपिटल जो है वो कमर्शियल एंटरप्राइज में कंट्रीब्यूट करते हैं। देन इट कुड ऑल्सो बी कि यहाँ पर एक तो ना कि कैपिटल हो गया, अब जिसके पास कैपिटल नहीं है लेकिन उनके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है या कोई ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर ये हो जाती है शिरकतुल अमवाल या अमाल। ठीक है, तो अमाल के अंदर जो शिरकत है, सॉरी अम्बाल वो थी जिसके अंदर माल या कैपिटल की शिरकत होती है, और अमाल जो है वो उसके अंदर जहां पर आप अपनी सर्विसेज दोनों लें। दो लॉयर्स हैं, वो दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं कि जी हम अपनी लॉ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब इसके अंदर फर्दर आगे की भी डिटेल है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि जी दोनों ने पार्टनरशिप ऐसे कर ली कि जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने केसेस लड़ता है, जितने के भी केसेस हमारे पास आया करेंगे, हमारी फर्म बनाते हैं हम एक, जिसके अंदर हम लॉयर होंगे दोनों, जितने केसेस आएंगे उन केसेस का जो भी पूल बनेगा उसमें से हम पैसे आपस में डिवाइड करें, जो भी रेशियो उनकी आपस में तय हो जाए। तो जी हम मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि जी जितने केस जो जाके लड़ेगा उसको पैसे मिलेंगे, तो जॉइंटली जो पूल बन जाएगा जितने केसेस आया करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एक पर्टिकुलर बिजनेस का लॉयर है, एक फैमिली लॉयर है, एक कोई एक, अब ये जरूरी नहीं है कि दो ही हो, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पार्टनर्स, टू या मोर पार्टनर्स जो हैं वो मिलकर एंटरप्राइज बना सकते हैं। तो दो से तीन थे दोस्त, तो उन्होंने लॉ फर्म बना ली, तीसरे का अपना कोई इंटरनेशनल लॉ या कोई और लॉ के अंदर है, तो जो केस आते हैं अकॉर्डिंगली वो जाके अपने केसेस अदालत में देख लेते हैं, और उसके जो सेंटर में पूल एक बन जाता है महीने के बाद या जो भी टाइम पर डिसाइड होता है, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो आपस में वो डिवाइड कर लेते हैं विद द रिस्पेक्टिव शेयर जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ पहले से। तो ये होता है शिरकतुल अमाल। ठीक है, वेयर ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली अंडरटेक टू रेंडर सम सर्विसेज फॉर देयर कस्टमर्स एंड द फ्री चार्ज फ्रॉम देम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड रेशियो।
फॉर एग्जाम्पल इन इफ टू पीपल एग्री टू अंडरटेक टेलरिंग सर्विसेज, हाँ इसके अंदर दर्जी की एग्जांपल यूज होती है, दो कहते हैं हम टेलरिंग की सर्विस देंगे, दोनों मिलकर वो कपड़े सिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितने सिए, उन्होंने एग्री किया हुआ है पहले से ही कि जी हम जॉइंट पूल में से पैसे डिवाइड करेंगे तो वो भी कर सकते हैं. So for their customers on the condition that the wage earned will go into a joint pool which will be distributed between them irrespective of the size of the work each partner has actually done. This partnership will be a shirkatul amal, which is also called shirkatul takabbul or shirkatul sanai or shirkatul abdan. Then comes it shirkatul wujuh, जो पार्टनरशिप इन गुडविल होती है कि जो उनकी गुडविल की वजह से वो कहीं से माल उठाते हैं और आगे बेच देते हैं, तो कहते हैं क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी है तो हम इसकी बेसिस के ऊपर कहीं से माल लेंगे, उसको लेके आगे बेच दिया करेंगे, तो जो हमारी गुडविल है इसकी वजह से हम प्रॉफिट शेयरिंग किया करेंगे. Basically the word wuju has its roots in the Arabic word wajahat, जिसका मतलब होता है goodwill. Here the partners have no investment at all, कोई investment वो नहीं करते. They purchase commodities on a deferred price, ठीक है कि जी हम आपको इसकी पैसे बाद में देंगे, हम आपको commodity लेके जा रहे हैं, जो by getting favorable credit terms because of their goodwill, ठीक है ना, कि उनको ये जो क्रेडिट टर्म मिली है ये उनकी गुडविल की वजह से मिली है. एंड सेल गुड्स एट स्पॉट, की जो वो चीज बेच रहे होते हैं वो फिर एट स्पॉट बेच देते हैं, वो उधार नहीं बेचते, उसको एट स्पॉट बेच देते हैं. द प्रॉफिट सो अर्नड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम एट एन एग्रीड रेशियो, जो उन्होंने एग्रीड की होती है पहले से. ठीक है, अभी जो ईच ऑफ दीस थ्री टाइप्स ऑफ अबव शिरकतुल अक्द हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ठीक है, एक है शिरकतुल मुफव्वदा, जो कि कैपिटल, लेबर और प्रॉफिट के अंदर एट पार है. ठीक है, कि आपने शिरकत की है लेकिन अब कैपिटल, लेबर और प्रॉफिट तमाम चीजों के अंदर आप एट पार होंगे, मतलब कि जी आप कैपिटल भी बराबर शेयर करेंगे, मैनेजमेंट भी बराबर करेंगे, प्रॉफिट भी बराबर शेयर होगा और उसका जो रिवॉर्ड है जो भी है वो सारा बराबर शेयर होगा. तो एब्सोल्युटली क्योंकि सब कुछ इक्वल है, तो इट इज अ नेसेसरी कंडीशन दैट ऑल फोर कैटेगरीज टू बी शेयर्ड अमंग्स्ट द पार्टनर्स. If any one category is not shared in absolute equality, then the partnership becomes shirkatul ainain. कि अब कोई भी चीज इसमें से कोई एक चीज भी है कि जो आपने इक्वली शेयर नहीं की, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग आपने इक्वल नहीं की, या मैनेजमेंट के अंदर शेयरिंग आपने इक्वल नहीं की, या कैपिटल में शेयरिंग आपने इक्वल नहीं की, तो ये शिरकतुल आइनैन हो जाएगा, ये शिरकतुल मुफव्वदा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर सब चीजें कैपिटल, लेबर और प्रॉफिट एट पार बराबर होंगे. So every partner who shares equally in a trustee, because every partner who shares equally is a trustee, guarantor, and agent on behalf of the other partner. ठीक है. Now शिरकतुल आइनैन, ठीक है, तो ये मोर कॉमन टाइम है शिरकतुल अक्द की, जहां पर कैपिटल, मैनेजमेंट और प्रॉफिट की रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और ये पहले से पार्टनर्स आपस में तय कर लेते हैं कि हम कितनी शेयरिंग करेंगे. All those modes of sharing of partnership are termed as shirka in the terminology of Islamic fiqh, while the term musharka is not found in the books of fiqh. This term, that is musharka, has been introduced recently by those who have written on the subject of Islamic modes of financing, and it is normally restricted to a particular type of shirka. It is the shirkatul amwal, where two or more persons invest some of their capital in a joint commercial venture. However, sometimes it includes shirkatul amal, also where a partnership takes place in the business of services. कि services दोनों दे सकते हैं तो दोनों उसमें partnership कर लेते हैं. It is evident from this discussion that the term shirka has a much wider sense than the term musharka, as in being used today. The latter is limited to shirkatul amwal. Only, for example, all the partners invest some capital into a commercial enterprise, while the former includes all types of joint ownership and other those of partnership. Now the role and conditions of shirkatul aqd, ठीक है, जो कॉमन कंडीशन शिरकतुल अक्द की है वो ये है. पहली चीज, द एग्जिस्टेंस ऑफ मुतकैदा, मुतकैदीन, ठीक है, जो कि है पार्टनर्स, कि पार्टनर्स की एग्जिस्टेंस और उनका सेन और मैच्योर होना और कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है. ठीक है, सो एक पार्टनर सेन होंगे एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और फिर वो मैच्योर इतने होंगे कि वो कैपेबल हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, and the partners must be sane and mature and capable of entering into a contract, and the contract must take place with free consent of the partners without any fraud or misrepresentation. तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो विद फ्री कंसेंट होगा
और कोई पार्टीज जो है उनके साथ कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं की गई हो। देन द प्रेजेंस ऑफ द कमोडिटी, तो जो प्राइस और कमोडिटी इटसेल्फ जो है उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। दिस मींस द प्राइस एंड कमोडिटी इटसेल्फ। देयर आर आल्सो 3 स्पेशल कंडीशन विच जो इसके ऊपर अप्लाई होती हैं, वो हमने पहले भी डिस्कस की हुई होंगी, तो हम वो दोबारा भी आगे डिस्कस कर लेंगे। देन कम्स इन द कमोडिटी ऑफ पार्टनरशिप शुड बी कैपेबल ऑफ एन एजेंसी। ठीक है, तो उसकी ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एजेंसी के कैपेबल हो, कि ऐसी चीज हो कि जो अगर एक पार्टनर दूसरे को एजेंट बनाकर दे सके कि वो भी उसके बिहाफ के ऊपर बेच सके या उसके साथ डीलिंग कर सके। As each partner is responsible for managing the project, therefore he will directly influence the overall profitability of the business. As a result, each member in Shirkatul Aqd should duly qualify as legally being eligible of becoming an agent and of carrying on business. For example, A has written a book and owns it. B cannot sell it unless A appoints B as his agent. Next, the rate of profit sharing should be determined. तो ये पहले ही तय हो जाएगा बिजनेस के अंदर। अगर पहले से तय नहीं होता किसी बिजनेस के अंदर, तो फिर इक्वलिटी के साथ होगा कि तमाम को इक्वल बेसिस के ऊपर दे दिया जाएगा प्रॉफिट। लेकिन यूजुअली ये पहले तय हो जाएगा बिजनेस स्टार्ट करते हुए। सो द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रॉफिट अर्न शुड बी आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। If, however, the ratio is not determined beforehand, the contract becomes void, facet. Therefore, identifying the profit share is necessary. वैसे इसके अंदर जो मैंने कुछ देखा हुआ कि अगर नहीं हुआ था कहीं, ये पहले नहीं था, तो उस केस के अंदर ये कहते हैं कि जो आपका प्रॉफिट है वो इक्वली सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जबकि यहाँ इन्होंने जो कंडीशन दी हुई है कि जी अगर नहीं तय होती पहले, तो फिर ये फासद हो जाएगा और इसको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये एक कंडीशन मैंने कहीं देखी थी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बुक में मैंने पहले लास्ट टाइम देखी थी शायद। लेकिन हम इसी को लेकर चलेंगे जो इन्होंने कहा है। सो शेयर ऑफ ईच पार्टनर जो है वो पहले से फिक्स होना चाहिए और वो मेंशन्ड होगा बिफोर हैंड। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो है, इसके अंदर लॉस के अंदर जो शेयर है वो बड़ा क्लियर है कि लॉस का जो शेयर है वो हमेशा बेस्ड ऑन कैपिटल ही डिवाइड होगा। सो फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया, 10-10 हजार दो पार्टनर्स ने लगाए, तो पार्टनर ए को जब साल एंड हुआ तो प्रॉफिट पूरे कम बिजनेस का आया, प्रॉफिट लेट सपोज 1,000 रुपए। तो पार्टनर ए और बी की जो रेशो तय हुई थी वो थी 60 और 40 की, कि 60 पार्टनर ए लेगा, 40 पार्टनर बी लेगा, क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है, या 60 वाला जो ए पार्टनर है ये एक्टिंग या मैनेजिंग पार्टनर है। तो 600 रुपए जो है वो ए को मिल जाएंगे और 400 रुपए बी को मिल जाएंगे। जबकि लॉस अगर हो जाता यही 1,000 रुपए का, तो इन दैट केस जो स्लीपिंग पार्टनर उसने बिजनेस के अंदर 10,000 लगाए थे और दूसरे पार्टनर ने भी 10,000 लगाए थे, तो दोनों को 5-500 रुपए लॉस रिकॉर्ड किया जाता, क्योंकि लॉस शेयरिंग की रेशो तय है कि वो कैपिटल जितना इन्वेस्ट किया होगा उसकी बेसिस के ऊपर ही लॉस शेयर किया जाएगा। और एक और चीज कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगी, कि प्रॉफिट में भी शेयर होगा तो लॉस के अंदर भी शेयर होगा। ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, ये नहीं हो कि सिर्फ प्रॉफिट में शेयर हो लॉस में शेयर ना हो, दोनों में शेयरिंग होगी। By placing the okay, so all partners will share in the profit and as well as the loss. By placing the burden of loss solely on one or a few partners makes the partnership invalid. तो किसी एक या कुछ चंद पार्टनर सिर्फ लॉस बेयर करेंगे, अगर ऐसा कोई कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, ये पार्टनरशिप इनवैलिड हो जाएगी। A condition for Shirkatul Aqd is that the partners will jointly share the profit, कि जो पार्टनर जो है वो jointly profit को शेयर करेंगे। However, defining an absolute value of profit is not permissible. Therefore, only a percentage of the total return is allowed. अब ये कि इसके अंदर कोई प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर अगर आप ये देखेंगे उसने तय कर दिया कि इतना प्रॉफिट आएगा तो ये होगा, इतना प्रॉफिट आएगा तो ये होगा, ये नहीं कर सकते। अमाउंट को तय करके कोई रेशो तय नहीं की जा सकती। ओनली परसेंटेज ऑफ टोटल रिटर्न जो है वो अलाउड है कि उसको तय किया जाए। फॉर एग्जांपल, ये नहीं कि जी अगर हमारे बिजनेस ने 10,000 प्रॉफिट कमाया तो ए बी जो की जो रेशो होगी वो 60-40 होगी। अगर 20,000 कमाया तो 65-35 हो जाएगी। अगर 30,000 कमाया तो 55-45 हो जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ ये होगा कि टोटल प्रॉफिट जितना आएगा उसका 60-40 किया जाएगा या 50-50 किया जाएगा, या वट एवर रेशियो दे कैन डिसाइड।
लेकिन ये नहीं कर सकते इतने प्रॉफिट पे इतना, इतने पे इतना, ये अलाउड नहीं है। Now the basic rules of musharka. So musharka or shirkatul amwal is a relationship established by the parties through a mutual contract. ठीक है, mutual contract के through ये establish होती है. Therefore it goes without saying that all the necessary ingredients of a valid contract must be present here also. तो जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस थी वो तमाम यहां पर भी पूरी होनी चाहिए. For example, the parties should be capable of entering into a contract. The contract must be made with the free consent of the parties without any duress, fraud, or misrepresentation, etc. So, but there are certain elements which are specific to the contract of musharka. They are summarized as के ये जो है ये musharka के लिए specific हैं. So, basic rules of capital जो होंगे musharka के अंदर, either they should be जो musharka capital in the musharka agreement should be क्वांटिफाइड, मालूम होना चाहिए, मीनिंग हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड, कि कौन सा पार्टनर कितने पैसे लगा रहा है. तो ये जो उसको जो पैसे लगाए जा रहे हैं वो क्वांटिफाई किए जाएंगे. स्पेसिफाइड, ठीक है, मुतय्यन किया जाएगा, मीनिंग स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ करेंसी के इतने रुपए के अंदर. फॉर एग्जांपल कोई अगर एसेट ले आता है कि मेरा जी ये एक एसेट है, ये मशीन है, ये गाड़ी है, ये आप बिजनेस में यूज कर सकते हैं, तो वो चीज वो देगा तो उसकी प्राइस मार्केट से लगवाई जाएगी और उस प्राइस के ऊपर उसको इन टर्म्स ऑफ करेंसी स्पेसिफाई किया जाएगा. नॉट नेसेसरली बी मर्ज. सो मिक्सिंग ऑफ कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड कि जी उसको बिल्कुल मिक्स कर दिया जाए और आइडेंटिफाई अलग से ना किया जाए. जो गाड़ी ले आए उसको बेचना जरूरी है कि बेच के मार्केट से पैसे लाए जाए. वो गाड़ी भी यूज हो सकती है, वो बिल्कुल मिक्स तो नहीं हो जाएगी, वो डेफिनेटली जिसकी है उसके नाम पे ऑलरेडी होगी तो उसको एज एन एसेट यूज किया जा रहा है, तो वो मिक्सिंग करना जरूरी नहीं है. एंड नॉट नेसेसरीली बी इन लिक्विड फॉर्म, कि अगेन लिक्विड फॉर्म में होना भी जरूरी नहीं है. कैपिटल शेयर मे बी कंट्रीब्यूटेड इधर इन फॉर्म ऑफ कैश दैट इज लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी प्रोडक्ट, या किसी के पास को माल पहले से पड़ा था, उसने कहा जी ये रॉ मटेरियल इसका है तो इतना यार मेरे पास पहले से पड़ा, मैं वो ले आकर रख देता हूँ इसके अंदर, तो उतना माल भी मेरा डाल दो, तो मार्केट प्राइस के ऊपर वो उसका रॉ मटेरियल भी काउंट किया जा सकता है. या कोई मशीनरी उसके पास पड़ी है, कोई इक्विपमेंट उसके पास है. So in the case of a commodity, the market value of the commodity shall determine the share of the partner in the capital. तो जो commodity लाएगा उस commodity को जब वैल्यू कर लिया जाएगा मार्केट प्राइस के ऊपर, वो पार्टनरशिप के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन होगा. अगर उसके अलावा उसने कुछ नहीं दिया तो. देन कम्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द मुशारका. ठीक है, कि मुशारके की मैनेजमेंट किस तरह से होगी. अब इसके अंदर रूल्स कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है, जैसे चाहे पार्टनर्स आपस में इसकी मैनेजमेंट को तय कर सकते हैं कि वो किसी एक को एजेंट बनाकर मैनेजमेंट सारी उसको सौंप देना चाहते हैं या सारे के सारे मैनेज करेंगे. So the normal principle of musharaka is that every partner has a right to take part in its management and to work for it. ठीक है ना, जो नॉर्मल प्रिंसिपल वो यही है कि हर पार्टनर काम कर सकता है, करना जरूरी उसके लिए नहीं है, कर सकता है. However, the partners may agree upon a condition that the management shall be carried out by one of them and no other partner shall work for the musharaka. But in this case, the sleeping partner shall be entitled to the profit only to the extent of his investment. हाँ, ये एक रूल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर, जो मैं पहले बताना आपको भूल गया, कि स्लीपिंग पार्टनर का शेयर उसकी इन्वेस्टमेंट के शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता. ये एक गोल्डन रूल है कि जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है उससे ज्यादा परसेंटेज में उसको प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता. कि अगर उसकी, अब ये समझा दूं मैं पहले. फॉर एग्जाम्पल, तीन पार्टनर्स हैं और मिस्टर ए ने 40% इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसे और बी और सी ने 30-30 किए हुए हैं. अब मिस्टर जो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सी जो है वो मैनेज कर रहा है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, और मिस्टर ए और बी जो हैं वो बेसिकली उसके अंदर बिजनेस के अंदर स्लीपिंग पार्टनर्स हैं. तो अब ये नहीं हो सकता कि मैनेजिंग पार्टनर का जो शेयर होगा वो कम हो, और या जितना भी हो, लेट्स सपोज जो स्लीपिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट के अंदर शेयर 40% ए का और बी का 30% से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, उनको हम प्रॉफिट में भी 30 और 40% ज्यादा प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दे सकेंगे. लेकिन जो कि मैनेजिंग पार्टनर है इसका शेयर 30%, जो इसका सी का पार्ट शेयर है 30%, इसका शेयर 30% से ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये मैनेजिंग पार्टनर है. And the ratio of profit allocation to him should not exceed the ratio of his investment as discussed earlier. However, if all the partners agree to work for the joint venture, each one of them shall be treated as an agent of the other in all matters of the business.
any work done by one of them in the normal course of business shall be deemed as authorized by all partners. ठीक है, सो अगर सारे मैनेज कर रहे हैं तो फिर उनमें से कोई एक भी कोई काम कर देगा तो बाकी सारों के ऊपर वो काम बाइंडिंग हो जाएगा, ऐसा ही समझा जाएगा कि उसने एज एन एजेंट ऑफ दोज ये काम कर दिया है, तो वो बाइंडिंग होगा। नाउ बेसिक रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। Number one, the ratio of profit for each partner must be determined in respect of the actual profit earned by the business and not in the percentage of the to the capital invested by the him। ठीक है, पहली चीज आप ये नहीं कर सकते कि जी मैंने लेट सपोज 10,000 रुपए लगाए हैं तो मुझे हर साल 10,000 के ऊपर आपने 10% रिटर्न देना है, 10% प्रॉफिट देना है। नो, दैट इज नॉट अलाउड, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके जो इन्वेस्टेड पैसे हैं उसका प्रॉफिट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसके इन्वेस्टेड पैसों की जो रेशो है उसके हिसाब से उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तय जरूर की जा सकती है। तो परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिट या रिटर्न हो सकता है, परसेंटेज ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट उसको वापस रिटर्न नहीं दिया जा सकता। तो ये नहीं हो सकता कि कोई एक पार्टनर कहे जी मैंने तुम्हारे बिजनेस के अंदर 50,000 लगाया है तो मुझे सालाना तुम इस 50,000 के ऊपर 10% दिया करोगे। नहीं, वो सालाना उसको जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसका 10%, 20%, 40%, जितना आपस में प्रॉफिट की शेयरिंग तय हो जाए दे सकते हैं, लेकिन अगेन लॉस शेयरिंग भी होगी। ठीक है, तो पहला रूल कि उसके कैपिटल या इन्वेस्टेड पैसे के ऊपर उसको रिटर्न नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज एग्रीड बिटवीन देम दैट ए विल गेट 1% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। Then दूसरी कंडीशन, it is not allowed to fix a lump sum amount for any one of the partners or any rate of profit tied up with his investment। ठीक है, तो एक तो किसी एक पार्टनर को ना लमसम अमाउंट दी जा सकती है प्रॉफिट की, ना ही उसके साथ कोई एक उसकी जो रेट प्रॉफिट का तय किया जाए वो उसकी इन्वेस्टमेंट की बेस के पर तय किया जाए, जो पिछले रूल के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। सो फॉर एग्जांपल ये नहीं हो सकता कि कोई एक पार्टनर कहे जी क्योंकि मैं मैनेज कर रहा हूँ तो और मेरे बिजनेस के अंदर ये मैं काम करता हूँ तो मैंने इतने पैसे भी लगाए हुए तो मुझे जी एक तो आप लेट सपोज या ये कर दे वो कि जी मुझे आप सालाना ना 20,000 रुपया प्रॉफिट दिया करेंगे। अबे 20,000 टोटल प्रॉफिट ही ना हो बिजनेस का सालाना। या फिर इन दिस केस एग्रीमेंट ये नहीं हो सकता क्योंकि ये फिर इंटरेस्ट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि फिक्स कर दी गई अमाउंट अगर बिजनेस को प्रॉफिट ही ना हो फिर। तो इसलिए प्रॉफिट की परसेंटेज तय हो सकती है कि प्रॉफिट का 50% भी ले ले, अगर आपस में उनका एग्रीड है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन एग्जैक्ट फिगर के जी इतने पैसे देंगे मुझे, रुपए इतने देंगे सालाना प्रॉफिट के तौर पे, वो भी नहीं हो सकता। और ये भी नहीं कि जी वो कोई एक परसेंटेज ऑन इन्वेस्टमेंट ले ले कि जी सिर्फ एक पार्टनर को जी इतने परसेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा बाकियों को बाकी दिया जाएगा, नो, ये भी अलाउड नहीं है। Therefore, if A and B enter into a partnership and it is agreed between them that A shall be given rupees 10,000 per month as his share in the profit and the rest will go to B, the partnership is invalid. ये partnership नहीं हो सकती। Then एक और condition, if both partners agree that each one will get a percentage of profit based on his capital portion, whether both take part in the management of the business or not, it is allowed. ये अब सिंपल इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं। दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, अब वो दोनों ने 50-50 हजार रुपया दोनों ने लगाकर एक बिजनेस शुरू कर लिया 1 लाख रुपए से। तो वो ये आपस में जरूर तय कर सकते हैं कि जी हम 50-50% हमारा कैपिटल है तो जी प्रॉफिट का 50-50% कर लिया करेंगे, चाहे हम में से कोई बिजनेस की मैनेजमेंट में काम करे या ना करे, ये अलाउड है। ठीक है, म्यूचुअली तय करें। लेकिन अगेन अगर इनमें से कोई स्लीपिंग पार्टनर होता है तो उसके लिए रूल ये भी जरूरी है इसके अंदर फॉलो करना कि वो अपने इन्वेस्टमेंट के शेयर से ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर। ठीक है, अगेन एक और जो चीज अलाउड है, इट इज ऑल्सो अलाउड दैट इफ एन इन्वेस्टर इज वर्किंग हिज प्रॉफिट शेयर percentage could be more than his capital share irrespective of whether the other partner is working or not. For example, if A and B have invested rupees 1,000 each in a business and it may be agreed that only A will work and will get 2/3 of the profit while B will only get 1/3. Similarly, if the condition of work is also imposed on B it in the agreement, then the proportion of profit for A can be more than his investment. अब ये चीज मैं ऑलरेडी आपको पहले क्लियर कर चुका हूं ऊपर
कि दो पार्टनर्स हैं, उनमें से अगर एक काम कर रहा है इसके अलावा कि दूसरा काम करता है बिजनेस में कि नहीं करता, मैनेज करता है बिजनेस को कि नहीं करता, जो काम कर रहा है मैनेज कर रहा है, मेन जिसके साथ अभी बात हुई, तो वो उसका रेशो जो है वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है उससे ज्यादा हो सकता है जो आपस में उनका तय हो जाए। अगर दूसरा बंदा भी काम करता है लेकिन उनका आपस में तय हो गया है कि जी जो दो पार्टनर्स उनमें से एक, दोनों काम करें बिजनेस के मैनेज करने के लिए, लेकिन एक का जो उनके साथ आपस में तय हो जाए कि जी इसको हमने ये रेशो देनी है, या फिर एक बंदे को हमने 60% देना है रिटर्न, दोनों ने इक्वल अमाउंट शेयर की है, दोनों काम कर रहे हैं, तो उन्होंने तय कर लिया आपस में कि जी ए को 60% मिलेगा, बी को 40% मिलेगा, तो ये अलाउड है, उसकी इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज से ऊपर उसको दिया जा सकता है। Now, next part, if a partner has put an express condition in the agreement that he will not work for the musharaka and will remain a sleeping partner throughout the term of the musharaka, then his share of profit cannot be more than the ratio of his investment. However, the Humbly school of thought considers fixing the sleeping partner's profit share more than his investment share to be permissible. ठीक है, सो ये ज्यादातर का एग्रीमेंट इसके ऊपर यही है कि अगर एक पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट लिखवाते हुए ये एग्रीमेंट के अंदर लिखवा दिया है कि मैं स्लीपिंग पार्टनर ही होऊंगा और मैं इसके अलावा उस बिजनेस की मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व हूं जब तक ये बिशारका रहेगा, तो इन दैट केस ये कंडीशन है कि उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट की रेशो से ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बिजनेस के अंदर 50% पैसे लगाए हैं तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर, प्रॉफिट के अंदर जो शेयर है वो 50% से ऊपर नहीं हो सकता। हावेवर हम्बली स्कूल ऑफ थॉट के अंदर उसका शेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रखने की परमिशन है। It is also allowed that if a partner is not working, his profit share can be established as less than his capital share. ठीक है, तो ये भी अलाउड है कि अगर कोई वर्किंग पार्टनर नहीं है तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट का शेयर है उससे कम रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, उन्होंने 50-50% पैसे लगाए, बिजनेस शुरू कर दिया, अब जो है एक मैनेज कर रहा है और दूसरा स्लीपिंग पार्टनर है, तो जो मैनेज कर रहा है उसको 60% और जो स्लीपिंग पार्टनर उसको 40% दिया जा सकता है, उसके जो इन्वेस्टमेंट का शेयर 50% चाहे, लेकिन उससे कम उसे दिया जा सकता है। Lastly, if both are working partner, the share of profit can differ from the ratio of investment. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो, कि अगर 50-50 हजार रुपए लगाए हैं दोनों ने 50-50%, तो प्रॉफिट शेयरिंग भी 50-50 होगी। ये भी हो सकता है कि चाहे दोनों वर्किंग पार्टनर्स हैं, एक 60 कर ले दूसरा 40% के ऊपर एग्री कर जाए, एक 55 कर ले दूसरा 45 के ऊपर एग्री कर जाए, तो जो उनके दरमियान एग्री हो जाए वो अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल जैद एंड बकर both have invested rupees 1000 each. However, Zaid gets 1/3 of the total profit and Bakr gets 2/3 of this is allowed. This option of Imam Abu Hanifa is based on the fact that capital is not the only factor for profit distribution, but also labor and work. Although the investment of two partners is the same, but in some cases quantity and quality of work might differ. तो ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर कहे मैंने ज्यादा काम करना है भाई, मैंने ज्यादा मैनेज करना, तुम दूसरा मैनेज तुम भी कर रहे हो लेकिन तुमने थोड़ा टाइम, या तुम अपनी कोई और काम भी करते हो, तो तुम्हारा इसके अंदर इतने परसेंट टाइम तुमने लगाना है, मैंने इतने परसेंट लगाना है, तो हम इसकी प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो डिफरेंट कर लेते हैं, तो वो की जा सकती है। नाउ द बेसिक रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, ये बड़े क्लियर है और बड़ा सिंपल है। All scholars are unanimous on the principle of loss sharing in Sharia based on the sayings of the Sayyidina Ali ibn Talib that is as following: loss is distributed exactly according to the ratio of investment and the profit is distributed according to the agreement of the partners. Therefore, the loss is always subject to the ratio of investment. For example, if A has invested 40% of the capital and B has invested 60%, they must suffer the loss in the same ratio as their investment portion. Not more, not less. Any condition contrary to this principle shall render the contract invalid. Moving on, the powers and rights of partners in the Musharaka. After entering a Musharaka contract, partners have the following rights: the right to sell the mutually owned property, since all partners are representing each other in Shirka and all have the right to buy and sell for business purposes. Therefore, वो कोई भी mutually owned property जो business की है, कोई एक भी बेच सकता है उनमें से.
The right to buy raw material or other stocks on cash or credit using funds belonging to the shirka to put into the business. तो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करने के लिए कोई रॉ मटेरियल या कोई और चीज वो परचेज करना चाहे, चाहे क्रेडिट पे या कैश के ऊपर, बिजनेस के पैसों से, तो वो कर सकता है, कोई भी एक पार्टनर कर सकता है, ठीक है, अगर वो सारे मैनेजिंग पार्टनर्स हैं तो। द राइट टू हायर पीपल टू कैरी आउट बिजनेस इफ नीडेड, तो कोई भी उनमें से हायर कर सकता है। इस तरह से द राइट टू डिपॉजिट मनी एंड गुड्स ऑफ द बिजनेस बिलोंगिंग टू शिरका एज अ डिपॉजिटर ट्रस्ट वेयर एंड व्हेन नेसेसरी, तो कहीं उनके पास उसको डिपॉजिट करवाना पड़ता है तो वो जहां चाहे उसको, जब चाहे उसकी जरूरत पड़े तो वो डिपॉजिट करवा सकता है। देन द राइट टू यूज शिरकाज फंड्स और गुड्स इन मुदारबा, तो ये भी उसके पास राइट है कि वो शिरका के फंड्स के बेसिस के ऊपर कोई मुदारबा कर सकता है, उनसे कोई एक पार्टनर भी कर सकता है। Then the right of giving shirka's funds as hiba, a gift or loan. If one partner for purpose of investing in the business has taken a karde hasana, then paying it becomes liable on both. तो ठीक है, एक बिजनेस में लगाने के लिए उसने कर्जे हंसना एक पार्टनर ने किसी से लिया था, तो जो उसकी पेमेंट है या उसका रिटर्न है वो दोनों पार्टनर्स के ऊपर लायबल होगा। और इसी तरह से कि वो कोई गिफ्ट भी दिया जा सकता है एज हिबा, या लोन की पेमेंट जो हो सकती है वो कोई एक पार्टनर भी वापस कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल लोन एक बंदे ने लिया, पार्टनर, इसको मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं, ये लास्ट वाला पॉइंट जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों में से एक पार्टनर कोई गिफ्ट देना चाहता है या उसने कोई लोन लिया था अपने इस बिजनेस के लिए, जबकि वो पार्टनरशिप में था ऑलरेडी, तो उसने इस बिजनेस के लिए कोई लोन लिया जो कर्जे हंसना था, तो उसे वापस पे करना है, तो वो दोनों उसको वापस पे करने के लिए लायबल है, सिर्फ वो एक बंदा लायबल नहीं होगा। इस तरह से हिबा जो हुआ है वो दोनों की तरफ से हो गया, जो दोनों पार्टनर्स थे। Now the conditions for the termination of musharka. Musharka will stand terminated in the following cases. कोई एक पार्टनर कैंसिल करना चाहे तो भी वो टर्मिनेट हो सकता है, और फिर किसी की डेथ हो जाए उस केस के अंदर भी, तो ये पूरा एक कंडीशन है इसकी, मैं भी ये डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। इफ द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग द मुशारका हैज बीन अचीव्ड, जो कि जिस पर्पस के लिए मुशारका बनाया गया था वो अचीव हो गया, तो मुशारका डिमोलिश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if two partners form a shirka for a certain project, such as buying a specific quantity of cloth in order to sell it, and the cloth is purchased and sold with mutual investment, the rules are simple and clear. In this case, the distribution of profit will be as per the agreed ratio, whereas in case of loss, each partner will bear the loss according to his ratio of investment, ठीक है। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मुशारका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए मुशारका बनाएंगे कि जी हम ये वाला पर्टिकुलर काम करेंगे, ये बिल्डिंग बनाएंगे, ये प्रोजेक्ट करेंगे, ये चीज कंप्लीट करेंगे, ये इतना सेल का काम हम करेंगे कि इतना माल है, ये एक कंटेनर खरीद के बेचेंगे, तो वो जब हो जाएगा तो वो मुशारका खत्म किया जा सकता है प्रॉफिट और लॉस शेयर करके। हर पार्टनर का राइट होता है कि वो मुशारका को टर्मिनेट कर सके जब चाहे, ठीक है। तो कोई भी पार्टनर कभी भी उठ के कह सकते हैं ये मुशारका टर्मिनेट कर दिया जाए। उसका तरीका ये होता है कि जी अब डिफरेंट तरीके हैं कि एसेट्स को डिवाइड कर दिया जाए, या उसकी जो मार्केट वैल्यू लगवाई जाएगी बिजनेस की, और वो मार्केट में या तो सामान बेचकर उसको जो पैसे आएंगे वो सारों में डिवाइड कर दिए जाएंगे उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो के हिसाब से जो उनका पैसे बनते हैं। या फिर कोई एक पार्टनर कहेगा कि मैं ये सारा खरीदने को तैयार, बाकी पार्टनर मिलकर कहेंगे हम ये तुम्हारा शेयर खरीदने को तैयार हैं, तो तुम ये हमें बेच दो, मार्केट प्राइस पहले लगवाई जाएगी उसकी बिजनेस के एसेट्स की, उसके ऊपर वो बेच देगा। So every person has the right to terminate the musharka at any time after giving his partner a notice that will cause the musharka to end. For dissolving this partnership, if the assets are liquidated, they will be distributed between the partners on the following basis. If there is no profit and no loss to the assets, they will be distributed on par rate basis. In case of loss as well, all assets will be distributed on par rate basis. In case of the death of any one of the partners or any partner becoming insane or incapable of effecting a commercial transaction, the musharka stands terminated. ठीक है, अगर कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर किसी एक पार्टनर को इंसैनिटी हो जाए, वो पागल हो जाए, ठीक है, या अब वो कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहने का लायबल नहीं है, इतना इंसान हो जाए और इनकेपेबल ऑफ एंट्री इनटू अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, तो वो मुशारका ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। अगेन मुशारका इस केस में भी टर्मिनेट हो जाएगा अगर किसी का शेयर कैपिटल बिफोर मिक्सिंग इनटू द इन्वेस्टमेंट पूल जो है वो डैमेज हो जाए, तो भी मुशारका टर्मिनेट हो जाएगा, तो वो मुशारका नहीं हो सकता। In case of damage to the share capital of one partner before mixing the same in the total investment and before affecting the purchase, the partnership will stand terminated and the loss will only be borne by that particular partner.
ठीक है, तो जिसका सामान डैमेज हुआ है उसी ने उसको बेयर करना है, और पार्टनरशिप टर्मिनेट हो चुकी होगी, वो उसमें बाकी पार्टनर्स का कोई ताल्लुक नहीं होगा. However, if the share capital of all partners has been mixed and could not be identified singly, कि जब शेयर कैपिटल सबका मिक्स हो चुका है और अब सिंगली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, then the loss will be shared by all and the partnership will not be terminated. ठीक है, तब वो पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होगी. Okay, now the termination of musharka without closing the business. अब इस केस में होता यह है कि अगर एक ही पार्टनर टर्मिनेट करना चाहता है मुशारका, तो इस केस के अंदर अब ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अगर टर्मिनेट करने को एक ही पार्टनर कह रहा है, तो क्या बिजनेस को क्लोज करना जरूरी है, तमाम एसेट्स बेचना जरूरी है. और इसमें ये क्वेश्चंस भी राइज होते हैं कि जैसे कि क्या बिजनेस स्टार्ट करते हुए ये तय किया जा सकता है कि अगर एक क्लोज करना चाहेगा तो बिजनेस को क्लोज करके सारे उसके एसेट्स बेचे जाएंगे. मतलब इसमें डिफरेंट कंडीशंस है कि क्लोज किए बगैर अगर बाकी पार्टनर्स एग्री करते हैं कि जी हम चलाना चाहते हैं और एक ही बंदा छोड़ के जाना चाहता है, तो इन दैट केस इट इज इजी कि वो उसके साथ पैसे तय कर लें कि जी आपके इतने हैं, वो म्यूचुअल अपनी आपस में तय कर सकते हैं पैसे के इतने बनते हैं आपके शेयर के अंदर, तो उसको वो पैसे बाकी पार्टनर्स पे कर दें और उससे उसका शेयर खरीद लें. लेकिन अगर वो इसके ऊपर बज़ेदी हो कि नहीं इसको लिक्विडेट किया जाए, तो लिक्विडेट करने के अंदर अब सबका नुकसान हो सकता है उसके अंदर. तो इन दैट केस क्या उसको लिक्विडेट करना जरूरी है, इसके ऊपर फिक्का की राय डिफरेंट है. लेकिन जो यूजुअल उनका आजकल के हिसाब से कंसेंसस है वो यही है कि ये करना सही नहीं होगा बाकी पार्टनर्स के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा लॉस हो सकता है. If one of the partners wants to terminate the musharka while the other partner or partners would like to continue with the business, this process purpose can be achieved by mutual agreement. The partner who wants to run the business may purchase the share of the partner who wants to terminate his partnership, because the termination of musharka with one partner does not imply its termination between the other partners. However, in this case, the price of the share of the leaving partner must be determined by mutual consent. If there is a dispute about the valuation of the share and the partners do not arrive at an agreed price, the leaving partner may compel other partners on the liquidation or on the distribution of the assets themselves. The question arises whether the partner can agree with entering into the contract of musharka on a condition that the liquidation or separation of business shall not be effected unless all the partners or the majority of them want to do so, and that a single partner who wants to come out of the partnership shall have to sell his share to the other partner and shall not force them on liquidation or separation. This condition may be justified, especially in modern day situation, on the grounds that the nature of business in most cases today requires continuity for its success. The liquidation or separation at the instance of a single partner only may cause irreparable damage to the other partners. कि अगर अगर एक बंदा कहे कि जी मुझे बेचो और वो अभी प्रोजेक्ट अभी नया ही लगाया ही था, तो नया लगाया प्रोजेक्ट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई होती है जिसके ऊपर अभी तो रिटर्न कोई आया भी नहीं, तो अभी वो कहे कि जी बेचो और मेरे पैसे मुझे दो, तो फिर उस केस के अंदर बाकी पार्टनर्स को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है. तो इन दिस केस बाकियों के लॉस से बचाना उसकी भी जिम्मेदारी है. If a particular business has been started with huge amounts of money which has been invested in a long-term project and one of the partners seeks liquidation in the infancy of the project, it may be fatal to the interests of the partners as well as to the economic growth of the society to give him such an arbitrary power of liquidation or separation. Therefore, such a condition seems to be justified and it can be supported by the general principles laid down by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his famous hadith. All conditions agreed upon by Muslims are upheld, except a condition which allows that is prohibited or prohibited what is lawful. ठीक है, तो इसकी बेसिस के ऊपर उनका कहना यह है कि पहले ही एग्रीमेंट के अंदर ये कंडीशन लगाई जा सकती है कि पार्टनर्स जो हैं वो किसी एक पार्टनर के कहने के ऊपर लिक्विडेट नहीं करेंगे बिजनेस को, या तो मेजोरिटी कहे या पर्टिकुलर एक रेशियो तय की जाएगी कि इस केस के अंदर ही बिजनेस को लिक्विडेट किया जाएगा. ओके, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस तरह से होगी? एक रिव्यू कमेटी है, तो बैंक के पर्सपेक्टिव में इन्होंने बताया हुआ कि एक रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी जो कि कोई भी डिस्प्यूट अगर अकर कर जाता है बिजनेस या क्लाइंट के दरमियान में, बैंक के क्लाइंट के दरमियान में, तो वो उसको रिजोल्व करने के लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जा सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व की जा सकती है डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए. सिक्योरिटी इन मुशारका, ठीक है,
अब क्योंकि बैंक के हम ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर डील करें कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर क्या होता है, तो बैंकिंग में एक सिक्योरिटी भी जरूर रखी जाती है किसी भी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उस पैसे के अगेंस्ट वो सिक्योरिटी को रखते हैं। तो जो सिक्योरिटी रखी जाती है उसको आमतौर पे इंश्योर भी करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस के ऊपर अब जरा जो है स्कॉलर्स का इख्तिलाफ है, ये भी हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ। इन केस ऑफ अ मुशारका एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द क्लाइंट, the bank shall in its own right and discretion obtain adequate security from the party to ensure safety of the capital invested, financed, and also for the profit that may be earned as per profit projection given by the party. The securities obtained by the bank shall also, as usual, be kept fully insured at the party's cost and expenses with takafful, Islamic insurance. The purpose of this security is to utilize it only in case of damage or loss of the principal amount or earned profit due to the negligence of the client, कि अगर negligence की वजह से कोई चीज को लॉस हो जाता है तो वो रिकवर करने के लिए इस एसेट को यूज किया जा सकता है। लेकिन यहां पर जो ऊपर एक बात की गई है कि जो पार्टी की कॉस्ट के ऊपर उसे इंश्योर करवाया जाएगा सिक्योरिटी को, ये इस्लामिक स्कॉलर्स का कईयों का कहना है कि ये अलाउड नहीं है। अगर इंश्योर करवाना भी है तो बैंक अपने एक्सपेंस पे करवाए, क्योंकि बैंक ने अपने पास सिक्योरिटी रखी हुई है। वो जो एसेट किसी और का उसको जबरदस्ती कंपेल करके उसको इंश्योर करवाया जाए एसेट को, ये अलाउड नहीं है। ऐसे कई जगहों पर ये कहना है कि जी ये उससे करवाना राइट नहीं है। Now the difference between interest based financing and musharka. इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग और मुशारका के अंदर डिफरेंस क्या है कि अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन लोन एडवांस्ड बाय द फाइनेंसियर इज प्रीडिटरमिन्ड और रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड बाय द डेटर, ये उसको पे ही करना है। जबकि इन मुशारका डज नॉट एवर जो है वो फिक्स करता है, रेट नहीं फिक्स करता। मुशारका डज नॉट envisage a fixed rate of return. The return is based on the actual profit earned by the joint venture, और उसी की बेसिस के ऊपर प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द फाइनेंसर कैन, और अगेन इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग के अंदर द फाइनेंसर कैन नॉट सफर लॉस, जबकि मुशारका के अंदर द फाइनेंसर कैन सफर लॉस टू द इफ द जॉइंट वेंचर फेल्स टू प्रोड्यूस फ्रूट, ठीक है। तो कोई प्रॉफिट नहीं होता तो इस केस के अंदर ये लॉस हो जाता है, तो मुशारका के अंदर फाइनेंसर भी लॉस सफर करेगा। Now, the issues related to musharka. So, musharka is a mode of finance in Islam. The following are some issues related to the tenure of musharka, redemption in musharka, and the mixing of capital in conducting musharka. The first one is liquidity of capital. A question commonly asked in the operation of the musharka is whether the capital invested needs to be in liquid form or not. The answer as to whether the contract in musharka can be based on commodities only or on money varies among the different schools of thought in Islam. For example, if Zaid and Bakr agree to invest rupees 1,000 each in a government business and both keep their investments with themselves, then if Zaid buys clothes with his investment, will it be considered to belong to both Zaid and Bakr or only to Zaid? Furthermore, if the cloth is sold, can Zaid alone claim the profit or loss on the sale? In order to answer this question, the prime consideration should be whether the partnership becomes effective without mixing the two investment profits or losses. This issue can be resolved in the light of the following schools of thought of different fiqh. Imam Malik is of the view that liquidity is not a condition for the validity of musharka. Therefore, even if a particular partner contributes in kind to the partnership, his share can be determined on the basis of the evaluation according to the prevalent market price at the date of the contract. However, Imam Abu Hanifa and Imam Ahmad do not allow the capital of investment to be in kind. The reason for this restriction is as follows. Commodities contributed by one partner will always be distinguishable from the commodities given by the other partners. Therefore, they cannot be treated as homogeneous capital. If in case of redistribution of share capital to the partners,
Tracing back each partner's share becomes difficult. If the share capital was in the form of commodities, then redistribution cannot take place because they may have been sold by that time. Imam Shafi has an opinion dividing commodities into two: Dawatul Amthal, homogeneous commodities, and Dawatul Kima, heterogeneous commodities. So homogeneous commodities can commodities which, if destroyed, can be compensated by similar commodities in quality and quantity. एग्जांपल इसकी राइस हो सकती है, वीट हो सकती है, ठीक है। जबकि जो दावतुल कीमा है या हेट्रोजीनियस कमोडिटीज है, कमोडिटीज दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय सिमिलर कमोडिटीज लाइक एनिमल्स. Then Imam Shafi is of the view that commodities of the first kind may be distributed in may be contributed to musharka in the capital, while the second type of commodities cannot be part of the capital. In case of Dawatul Ammathal, redistribution of capital may take place by giving each partner similar commodities to the ones he had invested earlier. The commodities need to be mixed so well together that the commodity of one partner cannot be distinguished from the commodity contributed by the other. The illiquid goods can be made capital of investment, and the market value of the commodities shall determine the share of the partner in the capital. It seems that the view of Imam Malik is more simple and reasonable and meets the need of the modern business. Therefore, his view can be acted upon. We may conclude from the above discussion that the share capital in a musharka can be contributed either in cash or in the form of commodities. In the latter case, the market value of the commodity shall determine the share of the partner in the capital. Now the question comes about the mixing of the capital. So according to Imam Shafi, the capital of partnership should be mixed so well that it cannot be distinguished, and this mixing should be done before any business is conducted. Therefore, the partnership will not be completely enforceable if any kind of discrimination is present in the partner's capital. His argument is based on the reasoning that unless both investments will be mixed, the investment will remain under the ownership of the original investor, and any profit or loss on trade of that investment will be entitled to the original investor only. Hence, such a partnership is not possible where the investment is not mixed. Jabki according to Imam Abu Hanifa, Imam Malik, and Imam Ahmad bin Hanbal, the partnership is complete only with an agreement, and the mixing of capital is not important. They are of the opinion that when two partners agree to form a partnership without mixing their capital of investment, then if one partner bought some goods of the partnership with his share of the investment of rupees 1 lakh, these goods will be accepted as being owned by both partners, and hence any profit or loss on sale of these goods should be shared according to the partnership agreement. However, if the share of investment of one person is lost because before mixing the capital or buying anything for the partnership business, then the loss will be borne solely by the person who is the owner of the capital and will not be shared by other partners. Though if the capital of both had been mixed and then a part of the whole had been lost or stolen, then the loss would have been borne by both. Since in Hanafi, Maliki, and Hanbali school of thought, mixing of capital is not important, therefore a very important present day issue is addressed with reference to this principle. If some companies or trading houses enter into a partnership for setting up an industry to conduct business, and they need to open an LC for importing the machinery, this LC reaches the importer through his bank. Now, when the machinery reaches the port and the importing company needs to pay for taking possession, the letter needs to show these. Uh, the letter need to show those receipts in order to take possession of the goods. Under the Shafi school of thought, the imported goods cannot become the capital of investment, but will remain in the ownership of the person opening the LC, because at the time of opening the LC,
The capital had not been mixed, and without mixing the capital, musharaka cannot come into existence. Under this situation, if the goods are lost during shipment, the burden of loss will fall upon the owner of the LC. Even though the goods were being imported for the entire industry, this is because even though a group of companies had asked for the machinery or imported goods, the importers had not mixed their capital at the time of the investment. Contrary to this, since the other three schools of thought believe that a partnership can comes into existence at the time of an agreement rather than after the capital has been mixed, the burden of loss will be borne by all. This has two advantages. In case of loss, the burden of loss will not fall upon one partner, rather than it would be shared by all the partners. And if the capital is provided by the time of the at the time of the agreement, it stays blocked for the period or duration which the machinery is being imported. While if the capital was not kept idle till the actual operation could be conducted with the machinery, the same capital could have been used for something else as well. This shows that the decision of the three combined schools of thought is better equipped to handle the current import and export situation. Now comes in the duration of the musharka, or tenure of the musharka. For conducting a musharka agreement, questions arise pertaining to fixing the period of the agreement. For fixing the tenure of the musharka, the following conditions should be kept in mind. The partnership is fixed for such a long time that at the end of the tenure, no other business can be conducted. The second thing is it can be for a very short time period during which the partnership is necessary and neither partner can dissolve the partnership. Under the Hanfi school of thought, a person can fix the tenure of the partnership because it is an agreement that an agreement may have a fixed period of time. In the Hamli school of thought, this tenure can be fixed for the partner as it is an agency agreement, and an agency agreement in this school can be fixed. The Maliki school of, however, says that shirka cannot be subjected to a fixed tenure. The Shafi school, like the Maliki school, consider fixing the tenure of the tenure to be impermissible. Their argument is that fixing the period will prohibit conducting the business at the end of that period. Now, the use of musharka ya mudarba. So these modes can be used in the following areas or can replace them according to the Sharia rules. सो एसेट साइड फाइनेंसिंग कैसे की जा सकती है, शॉर्ट और मीडियम या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जा सकती है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जा सकती है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के सेटअप की फाइनेंसिंग की जा सकती है, लार्ज एंटरप्राइज की फाइनेंसिंग की जा सकती है, इंपोर्ट को फाइनेंस किया जा सकता है, इंपोर्ट बिल ड्रॉन योर अंडर इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट या इनलैंड बिल ड्रॉन अंडर इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट. इस तरह से ब्रिज फाइनेंसिंग हो सकती है, इस तरह से एलसी विद मार्जिन हो सकती है फॉर मुशारका, एंड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग होती है, प्री शिपिंग शिपमेंट फाइनेंसिंग हो सकती है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग हो सकती है और रनिंग अकाउंट्स फाइनेंसिंग भी हो सकती है शॉर्ट टर्म एडवांसेस के लिए. इस तरह से लायबिलिटी साइज के ऊपर जो फाइनेंसिंग होती है फॉर क्लाइंट सेविंग्स और महाना आमदनी या इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, डिपॉजिट गिविंग प्रॉफिट बेस्ड ऑन मुशारका मुदारबा विद प्रीडोमिनेंट रेशियो. ठीक है, इस तरह से इंटरबैंक लैंडिंग हो या बोरोइंग हो सकती है इसके साथ, या फिर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट ये एंड सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, टी बिल एंड फाइनेंशियल एंड फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड या डिबेंचर्स के अंदर की जा सकती है. सिक्योरिटाइजेशन फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन मुशारका की जा सकती है, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन मुशारका, फॉर एग्जांपल मिजान रिबा फ्री जो है सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मुराबहा के ऊपर हो वो किया जा सकता है. और फिर इस्लामिक बैंक मुशारका बॉन्ड बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग लार्ज अमाउंट्स प्रॉफिट बेस्ड ऑन द रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट जो है उसकी बेसिस के ऊपर ये की जा सकती है. ऑल दो इसके अंदर टी बिल्स और फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड या डिबेंचर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहा है ये मेरे लिए डाउटफुल है, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड्स के ऊपर या डिबेंचर्स के ऊपर या टी बिल्स के ऊपर, तो ये जो इंटरेस्ट है ये हराम है, तो वो उसके अंदर मुशारके का पैसा भी नहीं लग सकता. इवन इंटर बैंक लैंडिंग और बोरिंग के ऊपर भी मुझे इसके ऊपर इख्तलाफ है कि कमर्शियल बैंक के साथ जो इंटर बैंक की लैंडिंग और बोरिंग है उसके ऊपर भी लगता है कि उसके ऊपर भी इंटरेस्ट होता है, ओवरनाइट रेट होता है उसका भी.
Okay, so now the risks in Musharka financing. So some of the risks and problems that are being faced by Islamic banks in executing Musharka or Mudarba based financing are as follows. सबसे पहला है business risk in Musharka financing. The bank is sharing the business risk with the customer, since the return is in Musharka financing is dependent on the actual performance of the business. The bank should make a feasibility study of the customer's business of the customer and should prudently evaluate all the risk before making Musharka financing decisions. Since the exposure of that business's performance is on the bank and not on the customer, unless fraud or negligence is established on the part of the customer. तो जब तक कस्टमर के पार्ट के ऊपर नेग्लिजेंस एस्टेब्लिश नहीं होती है, फ्रॉड एस्टेब्लिश नहीं होता, तो ये रिस्क जो है वो बैंक के ऊपर रहेगा, जो बिजनेस का रिस्क है, जो जितने पोर्शन के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है. The risk of proper bookkeeping. Another problem in a Musharka transaction is the lack of transparent bookkeeping practices adopted by various companies due to taxation issues. Due to this lack of transparency, it is difficult to evaluate the actual performance of any business, since it is not completely portrayed in the disclosed accounts of the company, and in the absence of such information, it is difficult to enter into a Musharka agreement with the customer. Customer mindset. In Musharka financing, the actual profit and loss of the business are shared between the partners. If the business performs better than expected, then it will generate higher profit. If the higher profits are generated by the business, then the bank too will be getting higher profits as per the profit sharing agreement. But many customers are hesitant to provide profit that is more than the average market benchmark rate of financing. सो कस्टमर का माइंडसेट जो है वो भी देखना पड़ता है कि उससे ज्यादा वो उसको दे रहे हैं. Then comes in dishonesty. Another apprehension against Musharka financing is that dishonest clients may exploit the instrument of Musharka by not paying an return to the financiers. They can always show that the business did not earn any profit by manipulating the records of the company. They can claim that it has suffered a loss, in which case not only the profit but also the principal amount will be jeopardized. Then comes in the operational risk. The success of Musharka depends on upon better management of the factors of operational risk, which includes control over management, transparency in income, commitment by management. Islamic banks can take the following steps for proper management of operational risk in Musharka: by appointing banks representatives in company's board of directors, finance, internal audit. These representatives should be given proper authority and will be directly reporting to the bank's management. Then lastly, the credit risk. In Musharka, the Musharik bank is exposed to similar credit risk if some amount is payable by customers upon under the Musharka agreement as other banks, which includes risk of default and party risk. Credit risk can be mitigated by a proper evaluation of the customer's financial position. Any Sharia compliant security can be taken to secure the bank against any dishonesty or act of negligence by the customer. कोई शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटी उससे ले ली जा सकती है. इस तरह से इवेल्युएशन ऑफ द कस्टमर्स क्रेडिट हिस्ट्री भी की जा सकती है, एंड पास्ट रिलेशनशिप विद द बैंक को भी देखते हुए उसकी जो है वो इवेल्युएशन की जा सकती है कि इसका क्रेडिट रिस्क कितना है. So thank you everyone. Thank you very much, everyone. So next we'll discuss Darba, chapter 11. That's it for today. Thank you, everyone. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.